Hello student. Now last time we have seen halogen derivative of an alkane. In halogen derivative of alkylic alkane, we have seen a preparation of alkyl halides. Now in last lecture, we have seen preparation of alkyl halide, and that time I also told you that we are going to start one of the very important topic of this chapter is what is called as nucleophilic substitution reaction. Let's start with that. Now, what is substitution reaction is all about? Let's consider one reaction. Let's say Rx is one substrate is there. Okay, I will write this as a substrate. I'm going to react the substrate with any nucleophile, or let us say any Y reagent. I carry out the reaction, I find that I'm getting Ry and X, maybe plus minus etc. Now in this reaction what happens is Rs is a substrate in which X gets substituted by Y, and we are getting a product what is called as Ry. That is what a product is. Now a reaction in which one of the atom or group of atom of a reagent get substituted by another atom or group of atom, and whatever the product we are getting, that reaction is called as substitution reaction. That reaction is called as substitution reaction. So what happens in substitution reaction? In this case, X atom gets substituted by Y, so we say that it is called as substitution reaction. Now let's imagine that in case of this Y, suppose this Y is nothing but NU, nucleophile. Rx is a substrate. We are reacting a substrate with a nucleophile Nu. Okay, then what will happen? This Y get substituted by Nu. Then what we did? I just know what I did. I just replace X by Nu, that is a nucleophile. That means this is called as nucleophilic. This is called as nucleophilic substitution reaction. So this is what a nucleophilic substitution reaction in which an atom of a group of atom gets substituted by a nucleophile, that is called as nucleophilic substitution reaction. So generally what you're going to see reaction is this way. We are going to react a nucleophile which carries a negative charge with a substrate that is an alkyl halide. So you'll write this. This is substrate. We are going to react a substrate with a nucleophile. Here it is. Okay. Now what will happen is this. This nucleophile will combine with R and X atom. It will remove X atom. So you will get RNU plus you will get X minus. So this is what your product is. In this case, X is called as leaving group. This is called as leaving group. So अगर हम लोग सबसेट बोलते हैं तो सबसेट में क्या आएगा? ये अल्काइल ग्रुप है. So this is an alkyl group and this is what Lg, leaving group. So instead of this X I can write Lg also, because in many books it is written as Lg. So Lg is called as leaving group. So we'll write here Lg also. This is called as leaving group. So a nucleophilic substitution reaction, nucleophile removes the leaving group and itself attaches it to water alkyl group. This is called as nucleophilic substitution reaction. Let's start this one by one now. In nucleophilic substitution reaction, we are going to start with the first one, which is called as SN1 reaction. Now what about SN1 is? Start with this. Now before starting SN1 reaction, let's start with the example first. We'll see the example. Let's start this example is this is called as tertiary butyl chloride. तो हम लोगों ने अभी tertiary butyl chloride लिया and I'm going to react with an nucleophile, let us say OH minus. अब क्या होगा? It's very simple. What will happen? This nucleophile
Cl लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा बाहर, लिविंग ग्रुप Cl माइनस वो बाहर आएगा, और उसके बाद क्या होगा, दिस OH माइनस विल अटैच टू व्हाट, कार्बन atoms. Let us see what you will get. You will get this CH3 carbons, CH3 OH will attach here, and Cl minus, that is the living group, will come out. This is called as tertiary butyl alcohol. This is called as tertiary butyl alcohol. So very simple reaction. So tertiary butyl chloride undergoes hydrolysis with aqueous KOH, OH minus, and it gives you what, tertiary butyl alcohol. Now above reaction, it's actually take place in 2 steps. To start with this, with one by one. So this is what you are seeing is the first point. Second point, this reaction take place in 2 steps. Start this. First step is this. In first step, this is our tertiary butyl chloride. Cl minus, there is a breaking of bond between carbon and Cl minus. So chlorine atom, you will get carbocation and you will get Cl minus. So this is tertiary butyl carbonium ion. This is what a living group, that is Cl minus. Now this tertiary butyl carbonium ion, this carbocation can arrange itself after a formation. This carbocation may arrange itself anyway. So this is a trigonal planar structure. This is the first step, which is very slow step. So formation of a carbocation is very slow step. Let's start the next step now. Now in next step, what happened is very important one. Now in next step, I'm going to about this. ठीक है, तो इधर लिख देते हैं, you will write afterwards. ठीक है. Now this carbocation which is formed, it may be undergoes rearrangement, just now see. Now second step में क्या होता है देखो. Now in second step, this is what our carbocation is. In second step, this OH minus now came in a picture. This OH minus attack on this carbocation and there is a formation of a bond. Okay. This is what a product you got, tertiary butyl alcohol. Now, in this case, what is important is this. We've seen reaction. Here I said it is a 2-step reaction. Now, third point is this is, we'll write this is as A and we will write this is a B point. Point number 3. Now, point number 3 is very important. This is 2-step reaction. We have seen this is 2-step reaction. In this case, this first step is very slow step. First step is very slow step. बहुत slow step रहती है. And there is a formation of carbocation. There is formation of carbocation. जब तक ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तब तक ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक कर ही नहीं सकता है. So we used to say that the first step is called as rate determining step. उसको हम लोग RDS बोलते हैं. इसको हम लोग बोलेंगे rate determining step. ठीक है. So हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे. फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन में हमने देखा है. SN1 अभी तक क्या है मैंने कुछ बोला नहीं है. We have seen just first example. उसके बाद मैंने कहा ओके दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप. फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड. फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा. सेकेंड स्टेप में OH माइनस उसके ऊपर अटैक करेगा. और बाद में मैंने कहा ओके फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो स्टेप. और बाद में मैंने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन and that step is called as RDS, that is rate determining step. ठीक है. Okay, just copy that, just pause the video and just copy this down, then we will continue with this point here. Okay, finish. So we'll learn about this. Just move to the next one. Okay,
तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो स्टेप, दिस इज व्हाट रिडिटरमाइनिंग स्टेप तो हो गया. नाउ पॉइंट नंबर 4 is the rate of this chemical reaction is directly proportional to what this one tertiary butyl chloride. तो हम लोग लिख देते हैं इधर, it is directly proportional to tertiary butyl chloride. अब ये क्यों है? Because from this only we are going to get a carbocation. अगर तुम लोगों को कार्बोकैटायन चाहिए तो कार्बोकैटायन बनेगा कहां से? इधर से बनेगा, tertiary butyl chloride से बनेगा. So rate of this reaction is directly proportional to the concentration of what tertiary butyl chloride. So is to say R is equal to K into what this concentration is, tertiary butyl chloride. ठीक है, तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे? देखो, I said just now, I said what is called as SN reaction, nucleophilic substitution reaction, as rate of this reaction is directly proportional to concentration of only one substance. Only one substrate. कौन सा substrate है ये? Only tertiary butyl chloride. Rate of reaction is directly proportional to concentration of only one substrate. So we used to say that this is SN1 reaction. अब इस 1 का मतलब होता है unimolecular. Sorry, not a unimolecular. It is a first order. It is first order reaction. Unimolecular क्या होता है वो हम लोग देखेंगे chemical kinetics में. Unimolecular, bimolecular reaction is, but till the time being we will use to say this. What is SN1 is? It is a first order reaction. 1 का मतलब होता है first order reaction. Yes का मतलब आएगा it is a substitution reaction. ठीक है, and N का मतलब आएगा it is a nucleophilic. Okay, so it is a nucleophilic substitution reaction of first order. Okay, so first order nucleophilic substitution reaction कैसे बोलेगा चलेगा? तो हम लोगों ने भी क्या देखा? Why it is a SN1 reaction? Because rate of this reaction is directly proportional to the concentration of only one substance. इस एग्जांपल में हमने देखा कि tertiary butyl chloride का concentration जितना रहेगा उसके साथ उसके ऊपर डिपेंड है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे SN1 रिएक्शन. तो 3 पॉइंट हो गए, ये रिएक्शन हो गई. इसमें मैंने बोला ये 2 स्टेप है. थर्ड में मैंने बोला इट इज रिडिटरमाइनिंग स्टेप है. बाद में इधर मैंने क्या बोला? रेट ऑफ व्हाई इट इज कॉल्ड एज SN1. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. अब एक बात याद रखो, व्हाट द कार्बोकैटायन व्हिच इज फॉर्म हियर इन दिस केस. देखो हम लोगों ने एग्जांपल ये लिया इसलिए मैंने एग्जांपल ये बोला है कार्बोकैटायन है. एग्जांपल में भी वेरीज, तो मैं जो भी यहां बोलूंगा ऑल दैट थिंग्स, ऑल दिस पॉइंट विल एप्लीकेबल टू दैट रिएक्शन आल्सो. सो कार्बोकैटायन व्हिच इज फॉर्म, जो कार्बोकैटायन इधर बन रहा है, कार्बोकैटायन में रीअरेंज, वो खुद को रीअरेंज कर सकता है. इट मे अंडरगोज अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के ऊपर जा सकता है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा. ठीक है, सो कार्बोकैटायन में बी अंडरगोज रीअरेंज. तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट वन. पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 क्या है देखो, तो फिर से एक बार मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SN1 रिएक्शन. हम लोग ने एग्जांपल देखा, 2 स्टेप देखा है. फर्स्ट स्टेप में इधर देखा, व्हाई इट इज SN1 हम लोगों ने देखा है, व्हाई कार्बोकैटायन अंडरगोज रीअरेंजमेंट हम लोगों ने देखा है. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो. Okay, let's start with the 6th point. Now, point number 6 is we are going to talk something about substrate. अब ये सबस्ट्रेट के बारे में देखते हैं क्या है ये एक्चुअली. अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि SN1 रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने लिखी है, ऑल दिस SN1 रिएक्शन, उसका स्पीड ज्यादा चाहिए, तो इन विच केस द SN1 रिएक्शन फास्ट होगी. लेट्स स्टार्ट द सबस्ट्रेट फर्स्ट. वी विल राइट 2 एग्जांपल्स हियर, 2 3 टू स्टार्ट विद दिस. ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड, थर्ड लिखते हैं, और ये फोर्थ. सो ऑल दिस 4 कंपाउंड्स आर ऑन द ब्लैक बोर्ड. तुम लोगों को बताना है कि कौन सा सबस्ट्रेट अच्छा रहेगा. हिज फर्स्ट सबस्ट्रेट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, विच सबस्ट्रेट द SN1 रिएक्शन जो फास्ट रहेगी. ओके, वन बाय वन देखते हैं. ठीक है, let's start this. This is the first carbon atom, primary carbon atom. This carbon atom is secondary. This carbon atom is tertiary. This carbon atom is tertiary. This is second and tertiary carbon atom. अभी ध्यान से सुनो. It's not a second, it's the first one, primary.
ओके मैंने सब्स्टिट्यूट के बारे में लास्ट लेक्चर में बोला था कि सब्स्टिट्यूट कैसे होना चाहिए. नाउ इन ऑल दिस केसेस यू विल फाइंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इन ऑल केसेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा इधर, ठीक है, इधर रहेगा. ऑल दिस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इधर, ठीक है. तो कार्बोकैटायन स्टेबल किधर रहेगा? कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा इन दिस केस. यू विल फाइंड इन दिस केस कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल. अगर इसमें कार्बोकैटायन स्टेबल है इसका मतलब ये होगा कि इसमें कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा. जितना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतना जल्दी कैसे रहेगा? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोकैटायन. तो इसका नंबर फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट इसको नंबर देता हो, उसके बाद इसको सेकेंड नंबर आएगा, इसको थर्ड आएगा और इसको क्या आएगा? फोर्थ आएगा. सो इन दिस केस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे रहेगा? फास्ट रहेगा. ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं. जस्ट 1 मिनट, और एक एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में. बाद में तुम लोग लिख सकते हो जो मैंने अभी पढ़ाया है. टू स्टार्ट विद दिस एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और एक दिस वन. नाउ इन दिस एग्जांपल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस किधर रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का स्पीड किधर रहेगा? अभी ध्यान से देखोगे, अगर ये Br माइनस चला जाता है, सपोज दिस Br माइनस अगर चला जाएगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये Br माइनस चला जाए. एक मिनट, इसको निकाल देते हैं यहाँ से. ये Br माइनस चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा रहेगा? ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. ये तो अल्केन है, ये तो क्या है? अल्केन है. इसका मतलब क्या रहेगा? ये वाला कैसे रहेगा? ज्यादा स्टेबल रहेगा. तो इसको लिख देते हैं. सो दिस इज हाईली स्टेबल वन. ओके, तो तुम लोगों को एमसीक्यू जा सकता है. इन एमसीक्यू केसेस तुम लोग पूछा जा सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्पीड किसका ज्यादा रहेगा, विच सबस्ट्रेट? तो यू शुड इजीली एबल आइडेंटिफाई. जिधर कार्बोकैटायन टर्शियरी केस में रहेगा उधर क्या रहेगा? स्पीड ज्यादा रहेगा. ओके, सो लिख दो ये. यू आर गोइंग टू रब आउट एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पॉइंट इज. ओके, हो गया. सो 6 पॉइंट इज फिनिश. लेट्स स्टार्ट दिस. सब रब कर देते हैं, ठीक है. सो ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन नाउ. पॉइंट नंबर 7. अब हम लोग बोलेंगे कुछ इस पॉइंट के बारे में. वी हैव सीन सबस्ट्रेट. अभी बोलेंगे कुछ तो लिविंग ग्रुप के बारे में. अभी लिविंग ग्रुप कैसे होना चाहिए? वी नो दिस I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस आर लिविंग ग्रुप आर देयर. अगर ये लिविंग ग्रुप है तो इसका ऑर्डर कैसे रहेगा? नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर कैसे रहेगा. बिफोर स्टार्टिंग विद लिविंग ग्रुप इसमें ऑर्डर कैसे रहेगा पहले काम कर देते हैं. इसमें H डाल देते हैं. सो HI, HBr, HCl एंड HF. ठीक है, तो एसिड कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ पहले लिख देते हैं. तो पहले अगर हम लोग लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसका मतलब इसका बेस स्ट्रेंथ अपोजिट रहेगा. तो इसका बेस स्ट्रेंथ ऐसे रहने वाला है. सो ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है. ठीक है, तो ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ अगर ऐसा रहेगा इधर लिख देते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा है. ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा रहेगा तो लिविंग ग्रुप का स्ट्रेंथ कैसे रहेगा? I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस. तो ऐसे लिविंग ग्रुप में रहता है. तो एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं ये. अभी तुम लोगों को मुझे बताना है कि इसमें बेस लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा रहेगा. ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा अलग कलर में लिखते हैं. ठीक है, ओके. अब सपोज इसमें कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा रहेगा? अगर रूल से जाओगे तो ये डेफिनेटली रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं. देखो, फ्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड रहता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. वो ब्रेक होगा ही, नो ब्रेक, वो बॉन्ड ब्रेक ही होगा नहीं. अगर बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब SN1 का रिएक्शन का पता ही नहीं है. ओके, तो इसको इंक्लूड ही करना नहीं हम लोगों को. SN1 रिएक्शन इसमें होती ही नहीं. अभी बचे 3. तो इसमें किसका, तो हम लोगों ने देखा है अभी लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा रहेगा. ओके, ये वाला अच्छा रहेगा. तो इसका आएगा फर्स्ट नंबर, Br का आएगा सेकेंड, इसका रहेगा थर्ड वन.
ठीक है, तो इसके हम लोग ऑर्डर ये लिख सकते हैं। तो सबसेट कैसे होना चाहिए, सबसेट में हम लोगों ने क्या देखा था, टर्शियरी कार्बोकैटायन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। अभी हम लोगों ने लिविंग ग्रुप में पढ़ा है अभी, ठीक है। तो उसके बाद अभी चलते हैं सॉल्वेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं 8 सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट कैसे रहना चाहिए, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्वेंट में हम लोगों ने देखा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा है। तो इस रिएक्शन जो है इज मोर फेवरेबल इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, वी नो दिस H2 इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक काम करते हैं, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग H2 लिया तो रिएक्शन कैसे रहेगी देखते हैं, ठीक है। सो पहले उसको रिएक्शन को देखते हैं। तो हम लोगों ने एग्जांपल ये लिया था, ओके। अब एग्जांपल ये लिया है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो मैकेनिज्म होगा अभी इसका देखते हैं। हम लोगों ने देखा सॉरी इधर क्या आएगा, X आएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले सकते हो या ऐसे ही लिखता हूं, एग्जांपल जल रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। X बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, यू विल गेट X आउटसाइड, तो X माइनस आएगा और इधर कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला नीचे आएगा इधर, तो हम लोग के पास अभी वाटर मॉलिक्यूल है, बिकॉज ये कैरिंग आउट दिस रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अगर हम लोग पानी में इसको रिएक्शन को कर रहे हैं तो ऐसे इसको लिख देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, दिस O वी नो दिस डबल बॉन्ड की पेयर है इसके पास, ओके। तो क्या करने वाला है, he is going to what, share this electron pair, this carbocation, we are going to get this पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और H प्लस यहां से निकल जाएगा। अगर H प्लस यहां जाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास फिर से वापस आ जाएगी और यू आर गोइंग टू गेट दिस OH। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंड स्टेप में दिस पोलर सॉल्वेंट दैट इज H2 विल अटैक ऑन दिस कार्बोकैटायन एंड फाइनली गेटिंग व्हाट, अ प्रोडक्ट। अभी ध्यान से सुनो, अगर SN1 रिएक्शन तुम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करते हो डेफिनेटली इज मोर फेवरेबल, लेकिन अगर पानी में करते हो दिस वाटर इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो देयर इज नो नीड ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओनली। इधर हम लोगों ने देखा है अभी कि हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, इससे H2 हम लोगों ने यूज किया, तो H2 itself act as a nucleophile and it what react with what this carbocation form what a product, okay। तो इसको हम रिएक्शन हम लोग बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वोलिसिस। और हम लोगों ने H2 यूज किया है एज अ पोलर सॉल्वेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस। अभी when you are using a polar protic solvent there is no need of what, using nucleophile, no need of using a nucleophile, generally बोल रहा मैं, ओके। सो नो नीड ऑफ यूजिंग अ न्यूक्लियोफाइल। कब, जब तुम लोग क्या करते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर H2 यूज करते हो देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, फिर से उसको रिपीट करते हैं। हम लोगों ने SN1 रिएक्शन देखा था, ओके। उससे पहले हम लोगों ने देखा व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें हम लोगों ने एग्जांपल देखा था टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद OH माइनस, क्या मिलता है वो देखा। उसके बाद में मैंने बोला कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। इन 2 स्टेप रिएक्शन में हम लोगों ने देखा इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फर्स्ट, रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो सकता है, यस देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, concentration of only one reactant that is tertiary butyl chloride, एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो सबसेट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन है, सबसेट कॉन्सेंट्रेशन एक ही है, तो हम लोगों ने बोला इट इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला सबसेट कैसे होना चाहिए एंड विच ऑफ द सबसेट रिएक्शन फास्ट कैसी रहेगी। तो हम लोगों ने देखा था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन जो रहेगा उसमें क्या रहता है, स्पीड ज्यादा रहता है। लिविंग ग्रुप का हम लोगों ने ऑर्डर भी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सॉल्वेंट कैसे रहना चाहिए, सॉल्वेंट कैसे रहना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं व्हाट इज SN2 रिएक्शन, ओके। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने अभी क्या देखा था, SN1 देखा, अभी देखते हैं SN2।